It is my last lecture of matrix. I am giving you inverse of matrix. How you calculate inverse of a matrix. First you calculate the adjoint and then check the value of determinant is not equal to 0 means non-singular matrix. Then we are able to find out the inverse of matrix. Attend and read inverse of matrix. Dear student, in this lecture I will going to explain you how we calculate or find the inverse of any matrix. For inverse of matrix, getting inverse of matrix is denoted by A inverse, and first we find the adjoint of A, and this adjoint of A divided by A. Mod A means determinant of A. We know condition of finding the inverse of a मैट्रिक्स का इनवर्स पाने के लिए मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होनी चाहिए. नॉन सिंगुलर मीन्स इसका मॉड लिया जाए तो मॉड जो है जीरो नहीं आए. अगर जीरो आएगा तो अगर हम जीरो से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा. वी कांट कैलकुलेट. सो मैट्रिक्स ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो. not equal to 0 means not equal to 0, it indicates matrix is non-singular matrix. Checking the condition, we find the adjoint of matrix. After checking the condition, we find the adjoint of matrix. Now we are going to calculate a 2 by 2 matrix, inverse of a 2 by 2 matrix. Find the inverse of a given matrix A. 1, 2, 3, 4. First we check matrix inverse possible or not. For that 1, 2, 3, 4 taking as a mod. After expanding 1 into 4 minus 2 into 3, we will find 4 minus 6, and it is equal to minus 2, which is not equal to 0. It means matrix A is non-singular matrix. So matrix A is given matrix A is non-singular matrix. So we are able to find out its inverse. We know adjoint. Now we find the adjoint of matrix. And we know transpose of cofactor of each and every element of matrix A. एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होता है उसमें क्या करते हैं कि ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं. अब कोफैक्टर मैट्रिक्स of A
suppose capital A11 is cofactor of 1 and A12 cofactor of 2, and similarly A21 and A22 cofactor of 3 and 4. Cofactor of 3 and 4. We take the cofactor of this one here 1, and cofactor of 1 is 4, so we put here 4, and cofactor of 2, because it is first row and second column, so we take minus sign, and this cofactor is equal to -2. And cofactor of 3, it is first columns and second rows. Second rows are first column, so we will take minus sign, and this cofactor is 2. This cofactor is -2. This cofactor is we are doing some wrong. Cofactor of 1 is 4, it's okay, and cofactor of 2 is -3, because 2 is the first rows and second column. 1 plus 2 is 3, so cofactor is 3. And cofactor of now A21 means 3 is also minus, because it is second rows and first column. 2 plus 1, and cofactor of 4 is naturally 1. Then cofactor matrix of A, we find 4, -3, -2 and 1. Finally cofactor, हमने 1 का कोफैक्टर लिया 4, and 2 का कोफैक्टर क्योंकि -3, क्योंकि ये फर्स्ट रोज ऑन सेकेंड कॉलम था. इसी तरह 3 का कोफैक्टर आपका -2 एंड 4 का कोफैक्टर 1. अब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा. इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर देंगे. ट्रांसपोज में पहली रोज को एज ए कॉलम ले लेंगे, जैसे ये 4 -3, और दूसरी रोज को सेकेंड कॉलम ले लेंगे. तो ये हो गया एडजॉइंट. अब इनवर्स आप जानते हैं, इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए. अब ये वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया 4 -2 -3 1 डिवाइडेड बाय -2. तो हमारा ए इनवर्स हो जाएगा फाइनली -1/2 4 -2 -3 1. ये आपका इनवर्स ए इनवर्स हो गया. अब इनवर्स के लिए चेक ये होगा कि ए इनवर्स ए या ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए. एग्जाम में आप इनवर्स निकाल के रख सकते हैं, अगर टाइम है तो चेक जरूर कर लीजिए. चेक से होगा कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है कि नहीं. अब ए इनवर्स ए हम निकालते हैं, तो ये मैट्रिक्स है 1/2. ए इनवर्स है 1/2 4 -2 -3 1. अब इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. ए है आपकी मैट्रिक्स जो ए है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 -2 -3 1. और ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है? ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारी है 1 2 3 4. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम से और फर्स्ट रोज को सेकेंड कॉलम से, उसके बाद सेकेंड रोज को फर्स्ट कॉलम से एंड सेकेंड रोज को सेकेंड कॉलम से.
तो हम ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम से, तो 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3। अब फर्स्ट रोज को सेकेंड कॉलम से, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 2 एंड माइनस 2 इंटू 4 एंड माइनस 2 इंटू 4। अब सेकेंड रोज को फर्स्ट कॉलम से -3 इंटू 1 एंड 1 इंटू 3। अब सेकेंड रोज को सेकेंड कॉलम से, तो -3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो हो गया -1/2। यहां आपका आ गया 4 माइनस 6, यहां 4 माइनस 8, और ये आपका हो गया -3 प्लस 3 एंड -6 प्लस 4, और आप देखेंगे कि आपको ये मिल जाएगा -1/2 माइनस 2। ये देखिए 4 2 जा 8 हो गया था, ये 8 हो गया था, तो 8 माइनस 8 0, ये -3 प्लस 3 0, और ये -2। Finally, we will find our identity matrix of order 2 because this multiplied by this 1, this 0, and this 1, and identity matrix. Now, this way we can check A inverse A, and अगर A को A inverse से कर दे तो ये identity matrix हो जाएगा. It means this minus 1/2 4 -1/2 4 minus 2 minus 3 1 is a identity matrix inverse of A, and multiplication of inverse of A and original matrix is identity matrix. Now it is proved A inverse is inverse of matrix A. ये आपका 2/2 का था. इसी तरह आप एक 3/3 मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकाल सकते हैं. फाइंड द इनवर्स of a matrix, inverse of a matrix A given 1 2 3 2 4 5 3 5 6. For inverse is possible or not, we take mod, means determinant of this matrix. 1 2 3 2 4 5 3 5 6 taking as a mod. अगर हम इसकी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की जानते, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा. अगर प्रॉपर्टी यूज कर लें तो ये है C1, ये है C2, ये C3. तो C2 को अगर रिप्लेस कर दें C2 माइनस 2C1 और C3 को रिप्लेस कर दें C3 माइनस 3C1, इस तरह हम रिप्लेस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा. फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज किया नहीं, तो 1 2 3 ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 माइनस 2, और ये 4 माइनस 4, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 6. इसी तरह इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3, 5 माइनस 6 एंड 6 माइनस 9. अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहां आपका हो जाएगा 1 0 0 2 0, और ये आपका हो गया -1. यहां आपका हो 3 तो है ही है, -1, और 9 माइनस 6 इज -3. अब expanding this determinant with respect to R1. R1 means first rows. R1 means first rows. तो ये क्या हो जाएगा 1 0 minus 1 co-factor of 1 0 minus 1 minus 1 minus 3.
अब ये 0 है तो 0 को किसी को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लेने की दिखाने की जरूरत है, ये भी 0 ये भी 0, दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, इसके को फैक्टर है, आप इसके सॉल्व करेंगे तो आपका ये को फैक्टर हम सॉल्व करेंगे तो बाहर 1 है और 0 इंटू -3 एंड दिस इज -1 इंटू -1, ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम से, और यहां सब 0 ही हो गया, इन प्लस 0, ये सब 0 ही हो गया। अब इसको सॉल्व करें आगे तो ये आपका होगा 1 0 एंड ये -1, -1 प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये आपका हो जाएगा -1। फाइनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी -1 और इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो मीन्स गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिमिलर, गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिमिलर, गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर। अब आप एबल है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के इनवर्स निकालने का, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला हमने बताया एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ओरिजिनल थी, उसकी हेल्प से अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, डायरेक्ट ट्रांसपोज लेते हुए कोफैक्टर हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसपोज लेते हुए कोफैक्टर ले सकते हैं। ये ओरिजिनल मैट्रिक्स थी हमारी ना। अब इसको एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ये देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये आपने अब इस रोज को ट्रांसपोज पे लेते जाएंगे तो इसके कोफैक्टर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। हमने देखिए इसको रोज को लेके ट्रांसपोज भी करते गए। अब यहां पर जो कोफैक्टर पॉसिबल है वो रख दें। तो अब कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर हम ले रहे हैं, तो आप देखिए 1 का कोफैक्टर 4 5, 1 का कोफैक्टर 4 5, A11 का 4 5 5 6। इसी तरह ये कोफैक्टर सारे हम रखते जाएंगे 1 बाय 1। तो ये हो गया 4 5 5 6 माइनस 2 3 5 6। आपने A21 का कोफैक्टर रख दिया, यहां A31 का मतलब इसके कोफैक्टर ये माइनस हमने इसलिए ले लिया कि ये आपका फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रोज था। इसी तरह हम कोफैक्टर रखते जाएंगे 2 3 4 5। अब 812 का A12 मीन्स 2 2 5 3 6, तो इसका कोफैक्टर रख दिया 2 5 3 6। देखिए हम ट्रांसपोज करते हुए लिख रहे हैं, 4 का कोफैक्टर ये दूसरी रोज दूसरी कॉलम से, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 3 3 6, 1 3 3 6। अब A32 का मतलब ये 5 वाला एलिमेंट, ये प्लस और 5 ये थर्ड रोज है और सेकंड कॉलम, इसलिए माइनस इसका लेंगे। इसके कोफैक्टर हो जाएंगे 1 3 2 5 माइनस 1 3 2 5। अच्छा, अब इसके 1 A13 2 3 4 5 ये पॉजिटिव लेंगे। 2 3 1 3 का कोफैक्टर, क्योंकि हमने कोफैक्टर ले लिया 1 3 का 2 4 3 5, इसका कोफैक्टर यहां से लेंगे 2 4 3 5। तो ये हो जाएगा 2 4 3 5। अब इसी तरह आप लेंगे A23 का कोफैक्टर, तो 2 3 ये है आपका, देखिए सेकेंड रोज में था, अभी कॉलम में कर दिया ना, ट्रांसपोज कर लिया है। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 का 1 2 3 5
1 2 3 5 माइनस इसलिए लिया ना कि 2 3 2 रोज एंड थर्ड कॉलम्स, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 5। लास्ट एलिमेंट है ए 3 3, इसको पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि ये 3 + 3 6 है, तो इसका साइन पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो गया 1 2 2 4। ये आपके कोफैक्टर हमने डायरेक्ट इसको, क्योंकि स्टेप्स बच जाएंगी, आप प्रैक्टिस हो चुकी तो आप कर सकते हैं, इनके कोफैक्टर ले लिए। अब ये कोफैक्टर को जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस हो जाता है ना, तो इस माइनस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे 4 6 यहां पर देखिए 4 6 जा 24 25। अब आप समझ चुके हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 24 25 माइनस 12 माइनस 15 10 माइनस 12, सॉरी ये माइनस है 12, ये एलिमेंट है 10 माइनस 12 माइनस कोफैक्टर को जब सॉल्व करते हैं तो उसको माइनर बोलते हैं, माइनस 6 माइनस 9। आप भी साथ साथ करते जाइए या पीडीएफ देख के लास्ट में कर लीजिएगा, स्टेप समझ लीजिए। हम जो कोफैक्टर रखे थे ना उसको एज ए डिटरमिनेंट सॉल्व कर ले रहे हैं, माइनस 6 4 माइनस 4, तो ये फाइनली हो जाएगा -1, ये आपका -3 होगा और ये बाहर माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा 3 -2 और ये आपका हो गया 3। इसको आप एज ए मैट्रिक्स लेंगे क्योंकि हम मार्क थोड़ी ले रहे हैं, ये एज ए मैट्रिक्स, तो ये आपका हो गया 3 -3 1 -2 1 0। अब आप जानते हैं ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आपने निकाला हुआ है ये मैट्रिक्स है, क्योंकि एडजॉइंट तो मैट्रिक्स होती है, तो ये हो गया -1 3 -2 3 -3 1 और -2 1 एंड ये 0 0 पे कोई फर्क डिवाइडेड बाय -1 जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। जब -1 है तो अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ए इनवर्स आपका हो जाएगा माइनस का +1 -3 2 -3 माइनस का प्लस हो जाएगा 3 -1 2 -1 0। तो इस तरह हम एडजॉइंट और इस करके इनवर्स निकाल सकते हैं। इस इनवर्स को भी जैसे पिछले 2/2 को चेक किया था, हम चेक करके देख सकते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है कि नहीं, जो हमने इनवर्स निकाला है वो सही है कि नहीं। तो ए इनवर्स कर ले या ए इनवर्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती तो हमने जो इनवर्स निकाला है वो हमारा ठीक है, नहीं तो गलत है। तो अगर एग्जाम में टाइम परमिट कर रहा है तो इसको चेक, अगर टाइम नहीं है तो रख दीजिए। इससे बस ये आप कंफर्म हो जाते हैं कि आपका मैट्रिक्स जो इनवर्स निकाला है वो आपका सही है, जो इनवर्स निकाला है वो आपका सही है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इस फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट सेकंड से जैसे मल्टीप्लाई करते थे उस तरह आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो पहली रोज को इस पहली कॉलम से तो 1 × 1 -3 × 2 +2 × 3। अब पहली को 1 × 1 -3 × 2 2 × 3, इसी तरह हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 1 × 2 सेकेंड रोज को फर्स्ट रोज को सेकेंड कॉलम से कर रहे हैं, -4 +2 × 5। अब फर्स्ट रोज को थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 1 × 3 +-3 × 5 एंड 2 × 6, 2 × 6।
अब सेकेंड रोज को फर्स्ट कॉलम से, तो -3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3, ये 3 है ना। अब सेकेंड को रोज को सेकेंड कॉलम से, तो -3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस -1, ये -1 ये था ना, -3 इंटू 2, -3 इंटू 2 और 3 इंटू 4 और -1 इंटू 5, -1 इंटू 5। अब सेकेंड को रोज को थर्ड कॉलम से, तो थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू 3 -3, ये है आपका -3 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 6। आप खुद करेंगे तो आप अपने चेक करते हुए कर सकते हैं। 2 इंटू 1 फर्स्ट थर्ड रोज को फर्स्ट कॉलम से, 2 इंटू 1 -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3। अब सेकेंड रो को थर्ड सेकेंड रोज को सेकेंड कॉलम से, तो 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4, -1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 5। अब थर्ड रोज को थर्ड कॉलम से, तो 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 6। तो यहां देखिए फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रोज को सेकेंड कॉलम से किया, फर्स्ट रोज को थर्ड कॉलम से, तो पहली लाइन तैयार हो गई। अब सेकेंड रोज को फर्स्ट कॉलम से किया, सेकेंड रोज को सेकेंड कॉलम से किया, सेकेंड रोज को थर्ड कॉलम से। फिर स्टार्ट करेंगे थर्ड रोज को मल्टीप्लीकेशन की भी इससे प्रैक्टिस हो रही है। थर्ड रोज को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रोज को सेकेंड कॉलम से और थर्ड रोज को थर्ड कॉलम से। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -6 प्लस 6, 2 -12 प्लस 10 और यहां हो जाएगा 3 -15 प्लस 12 और यहां हो जाएगा -3 प्लस 6 -3 -6 प्लस 12 -5, ये आपका -3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9 -9 प्लस 15 और ये -6। अब लास्ट लाइन 2 -2 प्लस 0 और ये 4 -4 4 प्लस 0 और ये आपका हो जाएगा 6 -5 प्लस 0। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी हुई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इससे प्रूव हो गया ए इनवर्स ए। अगर ए को ए इनवर्स से करें तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। इसका मतलब ए इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इनवर्स ऑफ ए। इस तरह हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स जो है एक स्प्लिटिंग टर्म्स का भी रोज एंड कॉलम्स को स्प्लिट करके निकालते हैं, तो वो अब ब्लैक बोर्ड पे आसानी से बताया जा सकता है। तो डायरेक्टली तो हम लोग जब अगर ऑफलाइन क्लासेस में इसको ले लेंगे, तो आज हमने आपको मैट्रिक्स की लास्ट चीज जो आपके अकॉर्डिंग टू कोर्स है बताया कि हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए पहले आप चेक कीजिए कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ए को एज ए मॉड लेते हुए। अगर 0 नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर है। फिर आप एडज्वाइंट निकालिए। एडज्वाइंट क्या होता है, हर ईच एंड एवरी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालें। कोफैक्टर को एज ए माइनस सॉल्व करें और फिर उसको ट्रांसपोज करते हुए रख दें। तो एडज्वाइंट को मॉड डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से डिवाइड कर दें तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं।
कर सकते हैं। ये आपका लास्ट कोर्स के अकॉर्डिंग था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, थैंक यू।